Hello everyone. Let me introduce to myself first of all. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BVD NIIT Lucknow. Okay? And here we will discuss about the surveying and geomatics. This is the engineering subject and it is we have read in second year, okay, in engineering in Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. This is course in second year. So, the first unit, in the first unit we have discussed about the basic concept of surveying, and on the series of these small points, or we can say in these topics, now we have reached at a contouring, and we have discussed from last two lectures contouring. Okay. So, in this lecture we have proceed same way and same topic contouring. In that contouring there is today's topic is indirect method of contouring. Okay. So, the today topic is indirect method of contouring. Subject is surveying and geomatics, subject code KCE 302. Indresh Kumar Singh, myself, Department of Civil Engineering Faculty, BVD NIIT Lucknow. This is the mod 1 lecture number 9. In the first unit we have discussed here mod 1 and this is the lecture number 9. Okay. So, now in last class we have discussed about contouring, how we can say what is contour and what is contouring. Now, then we have come on the points purpose of contours, and then we have come on the characteristics of contouring. Okay. Those are the very important, very effective, sufficient the things, points for the contouring. And to understand the graph, contour graph for any surveyors, must we watch those lectures and must we learn about how we know about the contour. Recap once again that the same elevation, the points which have the same elevation, and when we connected those points, the imaginary lines we get, and those lines is known as contour lines. Okay. And whenever we come on the methods of contourings, there are the direct methods and indirect method. In the direct methods we have discussed by leveling, staff leveling, okay, and direct methods we have used some instruments, tape, chaining, and after that we have come on the indirect method. There are three different way of employing the indirect method of contouring, that is first one is grid, second is cross sectional method, and third is the radial line methods or the tachometric methods. Okay. So, these three types of methods in the indirect methods. Basically we know that there are the two methods of contouring, one is direct method and second is indirect method, and in indirect methods there are the three different types, in which first is grid method and second one is cross sectional method, okay. Third radial line methods and tachometric methods. Okay. So, we can go now. We have here we can see that in grid method how we find the contouring by the indirect methods, and in which we have discussed the grid method. Grid method में क्या है, if the area is not large, it is divided into a grid or series of squares. The grid size may vary from 5 meters into 5 meter to 25 मीटर टू 25. ओके. याद रखिएगा हम यहाँ पर जो भी कोई भी रीजन है उसको अगर स्क्वायर में ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होंगी इन स्क्वायर की साइज, तो स्क्वायर 5 मीटर इंटू 5 मीटर की हो सकती है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर हो सकता है, 15 मीटर इंटू 15 मीटर के स्क्वायर हम बना सकते हैं,
और कहाँ तक जा सकते हैं, 25 मीटर से 25 मीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ग्रिड मेथड क्या है, इस तरीके से ग्रिड बनाएंगे और उस ग्रिड में क्या होगा कि स्क्वायर बनाएंगे। ग्रिड का सिंपल सा मतलब समझते हैं तो वही सेम चीज है कि ग्रिड में इस तरीके से हमको ग्रिड बनाते हैं और वो ग्रिड क्या होंगे, सब स्क्वायर टाइप में होंगे। हम डिवाइड कर देंगे उस एरिया को जिसका हमको सर्वे करना है। ओके, लेकिन अब ये बात तो पता होनी चाहिए कि हम उस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं तो उस स्क्वायर की क्या साइज हो सकती है। तो आप याद रखिएगा कि ग्रिड मेथड्स में जो साइज होती है वो 5 मीटर इंटू 5 मीटर से शुरू कर सकते हो और कब तक, 25 मीटर इंटू 25 मीटर तक हम वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड, द कंटूर इंटरवल एंड द स्केल ऑफ द मैप, ये हमको डिसाइड कहाँ से करना है कि कितना कंटूर इंटरवल लेना है, कितनी उसकी स्केल लेनी है। ये हमको डिसाइड करना है ग्राउंड को देखकर। जिस टाइप का ग्राउंड होगा उसी के हिसाब से हमको स्केल कंसीडर करनी होगी। ओके, मान लीजिए आपको पता है कि कैसा ग्राउंड है और उस ग्राउंड के हम कितने इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। आपके पास स्मॉल एरिया है तो 5-5 मीटर के स्क्वायर आप बना लीजिए, ग्रिड बना लीजिए और उनका हम एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उन 5 मीटर्स की एरिया में आप बहुत आसानी से कोई प्लांट है, कोई बिल्डिंग है, सारी चीज़ें हम डिनोट कर सकते हैं। यही सर्वे ग्राफ था हमारा, तो बहुत आसानी के साथ हम सब ड्रॉ कर सकते हैं और फिर हमको हर पॉइंट का हम एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे हमको एलिवेशन कैलकुलेट हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस पता चल जाएगी, हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को अपने एक ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर उनको कनेक्ट करेंगे जिनका सेम एलिवेशन रहेगा। जो हमको ग्राफ मिलेगा, जो मैप मिलेगा, उसको हम कंटूर मैप बोलेंगे। ओके, उसको स्टडी करना है और वही आपको अल्टीमेटली जानना है और जो कि आज के टॉपिक में हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि जो इनडायरेक्ट मेथड में हमारा पहला मेथड ग्रिड मेथड है। ग्रिड मेथड का मतलब होता है ग्रिड बनाना। तो इसका मतलब हमने अपनी एरिया को जो ज़्यादा लार्ज नहीं थी उसको डिवाइड कर लिया ग्रिड में छोटे छोटे, और छोटे छोटे ग्रिड हैं जिनकी साइज है स्क्वायर की 5-5 मीटर, 10-10 की मीटर, 15-15 मीटर की या 25 मीटर तक ले सकते हो। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा, लिमिट भी है। ऐसा नहीं आप कितना भी डिवाइड कर दो, क्योंकि फिर तो एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमारा ग्रिड मेथड नहीं यूज हो सकता। ओके, सो इसके बाद जब हम ये करेंगे कि 25-25 मीटर हो गया, द ग्रिड कॉर्नर्स आर मार्क्स ऑन द ग्राउंड एंड स्पॉट लेवल ऑफ दीज कॉर्नर्स आर देन डिटरमाइंड बाय नॉर्मल मेथड बाय लेवलिंग यूजिंग अ लेवल। अब याद रखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इनको हमें पहले मार्क कर लेना है सबसे पहले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उनको मार्क कर लेंगे और जब उनको हम मार्क कर लेंगे तो उन सभी का हमको जो भी रिड्यूस लेवल या जो हाइट ऑफ एलिवेशन निकालना है वो हम सिंपल यूज करके, लेवलिंग का यूज करके और कोई सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड से भी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कंबाइन हो सकता है और तब ग्रिड मेथड में फिर आसानी से हो जाएगा कि थोड़ा हमने डायरेक्ट यूज किया और फिर हमने ग्रिड मेथड यूज कर लिया। उसके बाद द ग्रिड इज प्लॉटेड ऑफ द स्केल ऑफ द मैप एंड द स्पॉट लेवल ऑन द ग्रिड कॉर्नर्स आर इंटर्ड द contoured of the desired value are then locked by the interpolation. This method is very suitable for a small open area where contours are required at the closed vertical interval. Okay, तो एक इंटरपोलेशन भी होता है, उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं और सारी चीज़ें कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, बना सकते हैं। एक सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या है, ओके, वो है रेडियल लाइन मेथड और टेकोमेट्रिक मेथड। कि जब हमको डायरेक्ट मेथड से हुआ ना, उसके बाद इनडायरेक्ट में आए, ग्रिड बना लिए, उसके कर लिए और उसके बाद में ग्रिड से नहीं हुआ तो फिर हम रेडियल लाइन मेथड या टेकोमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड अ नंबर ऑफ रेडियल लाइंस आर सेट आउट ऑफ द नॉन एंगुलर इंटरवल। बात को समझिएगा, किसी भी रीजन का आपको अगर कंटूर ड्रॉ करना है, यहां पर क्या होगा, टेकोमेट्रिक या रेडियल लाइन में हमको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके हमें क्या एंगल्स पता होने चाहिए। ओके, उन एंगल्स के हिसाब से हम पॉइंट्स को सेट करेंगे और वो एंगल्स कितने होंगे आप याद रखिएगा, 15 डिग्री से या 30 डिग्री। ओके, ईच स्टेशन। द पॉइंट्स आर सिलेक्टेड ऑन द लाइन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ग्राउंड सरफेस। और जो भी पॉइंट्स होंगे उन पे हम देखेंगे टेकोमेट्रिक, रेडियल लाइन, जैसा कि शो कर रहा है नाम ही, यहाँ पे टेक्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज हो रही होगी, तो वो एंगल्स के बेसिस पे हम उनको जानेंगे। एंगुलर इंटरवल फाइंड करेंगे हर लाइंस के और वो एंगुलर इंटरवल में जो एंगल्स लेंगे
वो 15 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, याद रखिएगा 15 डिग्री और 30 डिग्री का। ठीक, सो इन दिस मेथड्स a number of radial lines are set out at the known angular intervals 15 or 30 degree. At each station the points are selected on the line depending on the nature of the ground surface. Okay, instead of the level of tachometric, और हम इसको यूज कर सकते हैं, instead of a level of tachometer may be used, the observation are taken on the staff station and the elevation and distance are then calculated. अगर हम टेकोमेट्रिक यूज करते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, उनके टेकन ऑफ द स्टाफ ऑब्जर्वेशन जो है हम ले सकते हैं और उसके बाद में एलिवेशन और डिस्टेंस आर देन कैलकुलेटेड। बाद में हम उनको एलिवेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके। ओके, ये भी आप कर सकते हो रेडियल लाइन के लिए, या इसको हम टेकोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, और ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा पार्ट है। ओके, और क्या हो सकता है, अ ट्रवर्स एंड रेडियल लाइंस आर प्लॉटेड टू द स्केल RLS ऑफ द पॉइंट इंटर्ड, द कंटूर ऑफ डिजायर्ड वैल्यूज आर देन लोकेटेड बाय इंटरपोलेशन। दिस मेथड इज कन्वेनियंशियल इन द हिली एरियाज। अब ये रीजन कहाँ पे होगा हमारा, एक हिली एरियाज में कन्वेंशियल रहेगा। ओके, कि रेडियल मेथड्स, और इसमें क्या होता है कि इंटरपोलेशन की बात करो तो इंटरपोलेशन जो आ रहा है टर्म, जैसे कि यहाँ का आपको एलिवेशन पता है और यहाँ पे भी पता है, मान लीजिए यहाँ से ही वाले, ठीक, अब इस पॉइंट का अगर पता है तो आप कैसे इसका निकालोगे एलिवेशन, इस पॉइंट का आपको निकालना है, तो इन पॉइंट्स का जो निकालना है हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो, और बीच के जो भी इंटरवल होंगे उन पॉइंट्स का एलिवेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, बाय इंटरपोलेशन के द्वारा। फिर से समझ लीजिए कि अगर हमको कोई भी दो पॉइंट्स पता है, कोई कॉर्नर पॉइंट्स ही आपने सेलेक्ट किए, उन दोनों पॉइंट्स के हमको एलिवेशन पता है, तो हम क्या करें, इस तरीके से अगर मान लीजिए पता है, तो अब इनके बीच के किसी भी पॉइंट्स पे A, B, C कोई भी पॉइंट्स है, तो ये सब का एलिवेशन जो होगा वो हम किस मेथड से कर सकते हैं, इंटरपोलेशन। ये मैथमेटिक्स का एक है, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, इसमें आप देखिए कि ये लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं, इस लाइन पे सारे पॉइंट्स हैं, इस पे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं, और उसके बाद इन सारे लाइनों के जो पॉइंट्स होंगे जिन पर हमारा सेम एलिवेशन दिख जाएगा उनको हम ऐसे ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा होगा ये हमारे क्या बनेंगे, रेडियल लाइन मेथड्स के द्वारा होता है, और ये कंटूर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी लोग इस ग्राफ में समझ सकते हो कि कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ठीक, इसको देख लीजिए कि रेडियल लाइन जब ड्रॉ करेंगे इनको तो एंगल के हिसाब से हमको देखना होगा 15 डिग्री और 30 डिग्री, और उसके बाद में जो भी लाइन्स पे जहां पर भी हमको सेम एलिवेशन के पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उन सबको कनेक्ट करते हुए रफली हैंड से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वो हमारा क्या ग्राफ बन जाएगा, वो हमारा कंटूर बन जाएगा। ओके, तो ये मेथड्स थे आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंटूरिंग में पूरा एक टॉपिक बढ़िया से तैयार करना है, कंटूरिंग क्या होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स। तो दो मेथड्स हमने आपको बताए हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ओके, तो डायरेक्ट मेथड जो रहेगा और इनडायरेक्ट मेथड जो है, दोनों में जो टाइप्स ऑफ मेथड्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब हम दोनों के डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला कि डायरेक्ट मेथड मोस्ट एक्यूरेट बट स्लो एंड टीडियस। ऐसा नहीं है कि मतलब एक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट मेथड्स है इट इज मोस्ट एक्यूरेट, ये वैल्यू हमको बहुत एक्यूरेट देता है, ये बात ध्यान रखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा धीरे धीरे होता है, स्लोली इसको कर सकते हैं, और थोड़ा टीडियस भी होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको टाइम लग रही है तो आपको ये बात पता होगी कि अगर टाइम लगा के हम कोई काम कर भी रहे हैं, पेशेंस के साथ कर रहे हैं, तो अच्छा तो हो ही होगा। ओके, लेकिन अब इतना भी हम टाइम नहीं दे सकते हैं कि पता चले हमारा प्रोजेक्ट इतना डिले हो जाए, हमें बहुत फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो डायरेक्ट मेथड्स क्या होता है, एक्यूरेट देता है लेकिन वो स्लो एंड टीडियस होता है। इन कंपेयर टू दिस मेथड, इनडायरेक्ट मेथड नॉट सो एक्यूरेट बट रैपिड एंड लेस टीडियस। अब इनडायरेक्ट मेथड्स क्या है, उतना एक्यूरेट तो नहीं है, ओके, लेकिन ये क्या है, जल्दी देता है और टीडियस भी नहीं होता है। तो किसी में कुछ फायदा है तो किसी में कुछ नुकसान भी है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, दूसरा क्या है हमारा, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले कि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है हमारा।
डायरेक्ट मेथड कैसा होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, ओके। और इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होता है हमारा, चीपर होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। फिर हमारा डिफरेंस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हिली एरिया। अगर अब हिली एरिया में हमको करना है तो मैंने बताया था कि हिली एरिया में हमारे लिए डायरेक्ट मेथड्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड्स नहीं यूज कर सकते हैं। तब वहाँ हमारे लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, वहाँ पर हमारे लिए सुटेबल रहेगा हिली एरिया में इनडायरेक्ट मेथड्स, ओके। तो इनडायरेक्ट मेथड्स हमने बताया था कि जो रेडियल लाइन मेथड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन हिली रीजन्स में, सबसे सिंपल होता है और वो अच्छे से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला डिफरेंस, ड्यूरिंग द वर्क कैलकुलेशन कैन बी डन। जब हम काम कर रहे होते तो सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं किसमें, जब डायरेक्ट मेथड्स कर रहे हैं। कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स में फील्ड में हम नहीं कर सकते सारी कैलकुलेशन। अगला मेथड डिफरेंस क्या है कि कैलकुलेशन कैन नॉट बी चेक्ड आफ्टर कंटूरिंग। उसके बाद में अब देखिए यही चीज़ है कि अगर हम ग्राउंड पे कर लिए, अब कंटूर हमने बना दिया, उसके बाद फिर चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई गलती हुई, कोई गड़बड़ हुआ तो फिर ग्राफ ही हमारा ग्राफ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है हमारा कि कैलकुलेशन कैन बी चेक्ड एज व्हेन वी रिक्वायर्ड। क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड्स में एक बार हमने कंटूर ड्रॉ कर दिया और फील्ड पे ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या है हमारा कि हम कैलकुलेशन वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन होगी उसके बाद में जब बन जाएगा पूरा कंटूर, तो उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम चेक कर सकते हैं, ओके, जब भी हमें रिक्वायर होगी। तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में डिफरेंस है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से दोनों के। इसमें और पॉइंट एक जोड़ सकते हो कि डायरेक्ट मेथड्स में दो और जो टाइप्स होते हैं वो, और इनडायरेक्ट मेथड्स में तीनों टाइप्स, ये दोनों डिफरेंस में आप जोड़ सकते हो। तो ये सब पूरा कंटूरिंग का है। अब आपको जब ये सारी चीज़ें हैं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लॉटिंग अब करनी है, जब हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली, हमें मेथड्स भी पता चल गए, सारी चीज़ें हमने पता कर ली हैं, जब कंटूर क्या होता है, ओके, जब सब कैलकुलेट कर लिया, हर चीज़ हमें पता चल गया, अब हमको क्या करना है, उसको प्लॉट करना है, उस ग्राफ को बनाना है। किसी भी फील्ड पे अगर कोई सिविल इंजीनियर सर्वेयर गया तो वो अब क्या करेगा, कंटूर को कैसे बनाएगा, कंटूर मैप कैसे ड्रॉ करेगा, प्लॉट कैसे करना है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में कौन कौन से मेथड से, तो वो हम प्लॉटिंग ऑफ अ कंटूर मैप पढ़ते हैं, ओके। सो ये चीज़ हम आपको अब बता रहे हैं। बिफोर प्लॉटिंग द कंटूरिंग मैप सुटेबल स्केल वी सिलेक्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब ग्राफ हम ड्रा करेंगे, कोई भी ये बनाएंगे जब कंटूर मैप, ओके, यहाँ पर जो भी, तो उसको बनाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, एक स्केल माननी पड़ेगी, ओके। सिंपल सी चीज़ है, एक सर्वेयर को हमें पता होना चाहिए कि एक स्केल मानेंगे तो वो स्केल क्या होगी। जैसे आप ले सकते हो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ओके, ये भी स्केल ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर 2 मीटर ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर 2.5 मीटर ले सकते हो, और 1 सेंटीमीटर 4 मीटर, और 1 सेंटीमीटर 5 मीटर भी ले सकते हो। हेयर 1 सेंटीमीटर 2 मीटर इज सिलेक्टेड, हमने अभी जो बनाए थे तो उसमें हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर सिलेक्ट किया था, ओके। तो ये आपको स्केल सबसे पहले जब प्लॉटिंग करोगे कोई भी कंटूर मैप को तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक स्केल सेलेक्ट करनी है, ओके। ध्यान रखिए, अब हम लोग पूरा, अब आप इतना समझ चुके हो, सीख चुके हो, पूरा जान चुके हो, 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है कंटूर के बारे में, तो हम ये जान गए हैं कि कंटूर हमारा कैसे क्या होता है, और उसको अब हमको ड्रॉ कर रहे हैं, अब हम उसको मैप बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल, एक सूटेबल स्केल इसकी हमने कंसीडर कर ली। स्केल जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, और आपको पता है कैसे स्केलिंग करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF भी बोल सकते हैं। तो ये स्केल जो रहेगी, अब इसको हम बताएं एक, तो कैसे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलो तो 100 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, तो 1/100, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है, 1:100, ओके। तो ये भी स्केलिंग का है। तो ये टाइप्स ऑफ स्केल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो सारी चीज़ें पता है, और एक बार फिर से देख लो कि ये स्केलिंग करेंगे, और इसी तरीके से स्केलिंग जो रहेगी, स्केलिंग फैक्टर लेकर फिर हम ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, अ हॉरिजेंटल लाइन इज ड्रॉ।
एज द सेंटर लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसको बिल्कुल सेंटर लाइन जो हमारी रहेगी। आफ्टर दैट द चेनेज आर मार्क्ड अलॉन्ग द हॉरिजेंटल लाइंस अकॉर्डिंग टू द स्केल। चेनेज अगर चेनेज हमने किया है तो वो सब मार्क्स कर लेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, द ग्राउंड लेवल आर रिटन फ्रॉम द लेवल बुक अकॉर्डिंग टू द चेनेज, और चेनेज के हिसाब से एक देखो एक बुक होती है यहाँ पे, देखो ये नाम आया है लेवल बुक, ओके, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे उस बुक को लेकर वहाँ से ग्राउंड लेवल हम लिख लेंगे कि चेनेज के लिए कितना है, और कहीं पर भी हम शुरू करेंगे तो उसका एक हमें मीन सी लेवल पता रहता है, ओके। तो उसका अगर हमें मीन सी लेवल पता है तो वो हमें बस वही चाहिए, मीन सी लेवल एक मिल गया और फिर वहीं से हम शुरुआत करते हैं, ठीक। तो प्लॉटिंग ऑफ कंटूर मैप में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप, द क्रॉस सेक्शनल लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो भी होंगे आर आल्सो प्लॉटेड परपेंडिकुलर लाइंस। ये समझिए जो भी चीज़ें अगर हमने सेंटर लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है तो उसके आसपास की जो भी हैं राइट और लेफ्ट में एट ईच द चेनेस उस पर हम बनाएंगे और वो एक परपेंडिकुलर लाइन हर पॉइंट पे ड्रॉ करते जाएंगे, ओके। बाय इंटरपोलेशन कंटूर्स आर ज्वाइंड बाय स्मूथ कर्व्स कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर हमने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से हमको क्या करना है, वो माइंड में रखनी है चीज़ों को, और उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना है कि कौन से कट करेंगे कौन से नहीं कट करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दो ही ऐसी कंडीशन आई थी, एक ओवर हैंगिंग वाली और एक वर्टिकल क्लिफ वाली, दो ऐसी थी जहां पर हमारे क्या थे, कंटूर्स एक दूसरे को वर्टिकल क्लिफ में टच कर रहे थे और ओवर हैंगिंग में एक दूसरे को कट कर रहे थे। वो दो एक्सेप्शनल केस थे जो कि जिसमें कंटूर्स लाइन जो होती है एक दूसरे को जहाँ पे कट की या किसी एक पॉइंट्स को ही टच कर रही थी। उसके अलावा हम आपको बता दिए कंटूर की क्या प्रॉपर्टी होती है, कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओके। एक्सेप्शनल दो केस कौन कौन से, एक ओवर हैंगिंग और दूसरा क्लिफ वर्टिकल क्लिफ, ओके, दो याद रखिएगा। और फिर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में रखकर ही हम उसको मैप को बनाएंगे। फिर क्या करना है हमको, फर्स्ट फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम RL value and then first plot full values contour lines 47 48 49 etc. contour interval is 1 meter. After plotting these contours line reduce contour interval and it is taken 0.5 and contour lines is these are plotted, contour lines are then linked, okay। देखो क्या कर रहे हैं हमने, पहले मान लो बना लें 48 49 47, फिर हमने 0.5 को उनको रिड्यूस किया, फिर उस पर हमने ड्रॉ कर लिया, फिर और रिड्यूस किया उसको ड्रॉ कर लिया। आफ्टर दैट जितनी भी कंटूर लाइंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से जो भी रहेंगे हमारे, हम पूरा अपना एक कंटूर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपको जब भी कोई आप करेंगे कोई भी प्लॉटिंग ऑफ कंटूर मैप PCM जैसे कि है, तो वो हम जब ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि कैसे हमको ड्रॉ करना है, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, कि कोई भी कंटूर जब भी सर्वेइंग में आप पढ़ रहे होंगे, कंटूर के बारे में पढ़ेंगे तो आप आज से जान लीजिए कि क्या होता है हमारा पूरा। और ओवरऑल हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ओवरऑल कंटूर क्या होता है, और अगर ये लेक्चर्स आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे पूरा कि कंटूर क्या है, कैसे कंटूर को हम ड्रॉ करते हैं, और कैसे हम एक सर्वेयर के तौर पर किसी भी रीजन का किसी भी एरिया का हमको जो भी लेवल पता होना होगा करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। जैसा कि यहाँ पे ग्राफ में बनाया कि फाइनल जो हमने बनाया 490 का एलिवेशन है, यहाँ पे स्केल दी गई है किस तरीके से, तो ऐसे एक कलर भी फिल कर सकते हैं हम लोग, ओके। जब बाद में कलर फिल कर सकते हैं, जो लोअर वाले हैं उनका एलिवेशन उनमें हमने कोई सेट किया, फिर धीरे धीरे देखिए एलिवेशन बढ़ता गया, उसी तरीके से कलर का हमारा ब्राइटनेस बढ़ती गई। और ये लाइनें देखो ड्रा की गई, कहीं पे कट नहीं कर रही, इस तरीके से ऐसे जा सकती हैं, फिर ये जा सकती है, ओके। और फिर ये वाली देखो है, ये अलग बनी है, वही तो अलग है, और ये लाइन है, ये बाहर कहीं कट हुई होगी, ये कहीं आपस में नहीं कोई कट करेंगे, ओके। ये वाली पूरी सेम एलिवेशन वाली गई है, ये गई है, ओके। ये देखो यहाँ सेम टच करती हुई गई है। तो इससे हम जान गए कि हो सकता है यहाँ पे वर्टिकल क्लिफ हो, ओके, जहाँ एक जगह से दो तीन हमारे ये ड्रा हो रहे हैं कंटूर्स, तो वो हमारा वर्टिकल क्लिफ हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, वो वर्टिकल क्लिफ हो सकती है, ओवर हैंगिंग भी हो सकती है। अगर कहीं ऐसा केस मिल जा रहा है, जैसे हम देखते हैं अपने इसमें कि क्या मैंने कहीं पे ड्रा किया, एक हमारा ये मान लीजिए कंटूर जा रहा है, इस तरीके से निकल गया, ये कहीं नहीं कट कर रहा है,
ये यहाँ पर आया कट हुआ है, फिर ये वाला ऐसे गया है, ठीक, ये गया, ये टच हो गया, तो ये जैसे टच हुए ये हमने ग्राफ देखो बनाया, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो हमारे ये देखो कट किया है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं ओवर हैंगिंग भी हो सकती है, क्लिफ नहीं समझते हो जैसे, तो उनका अगर हमको ड्रॉ करना होता है तो वो हमारा ओवर हैंगिंग भी हो सकता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैसे हो सकता है ओवर हैंगिंग, मतलब ऐसे कोई रीजन है आपका, यहाँ पे कोई भी एक आपकी हिल है, ओके, तो अब कोई ऐसी अगर हिल है आपको इस तरीके से ये हिल मिल गई, अब ये देखिए ये आपकी ओवर हैंगिंग हिल हो गई है, ठीक। तो ऐसी कहीं पे रीजन मिल जाएगा तो दूसरा जब भी हम ड्रा करेंगे तो इस तरीके से ये भी ध्यान रखना है हमको कि ये जो एलिवेशन है, जो स्लोप है, ये भी ध्यान देना है कि किसी भी हिल का कि देखिए ज़्यादा स्टीप तो नहीं है, ज़्यादा हमारा बिल्कुल माइल्ड तो नहीं है, तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। और अगर ये वर्टिकल क्लिफ हो गई और फिर देखिए फिर ऐसे अगर बना है तो ये एक्सेप्शनल केस है, कि ओवर हैंगिंग और ये वाली वर्टिकल क्लिफ, ओके। और ये दो हमारे क्या हैं, एक्सेप्शनल केस हैं। फिर हम एक बार बता दे रहे हैं, याद रखना जिन पर क्या होगा हमारा एक्सेप्शनल केस हैं, जिन पर क्या होगा हमारा, जो हम कंटूर ग्राफ ड्रा करेंगे, कंटूरिंग, तो कंटूरिंग जो ग्राफ होंगे और मैप, ओके, तो वो क्या करेंगे, कट करेंगे। और इसके अलावा और कहीं पर भी ये आपस में कट नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल भी कि जब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कंटूर ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, सिर्फ दो केस में। वो कौन से दो हैं, ओवर हैंगिंग और एक वर्टिकल क्लिफ। ऐसे नहीं, वर्टिकल क्लिफ में एक पॉइंट से शुरू हो सकता है, जैसे कि इसका तो एलिवेशन जो रहेगा हमारा मान लीजिए तो वो यहीं पर रहेगा, अब ये सब रिड्यूस होते रहेंगे तो ये तो इसी पर पॉइंट आता रहेगा, ओके। तो ये हमारा मान लीजिए ऐसे बना, फिर ये इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ओके, एक ही जगह पे, तो ये इस तरीके से बनता रहेगा। हमें वही पॉइंट सब एक ही पॉइंट पे दिखाने हैं। और ओवर हैंगिंग में क्या होगा, ओवर हैंगिंग में ये हमारा कट कर सकता है इस तरीके से, ठीक। तो ये दो रहेंगे। ओवरऑल हम लोगों ने ये देख लिया है कि टोटल क्या, कैसे हम प्लॉट करते हैं, ये भी आज हमने इस लेक्चर में जान लिया। दोनों का डिफरेंस क्या है ये जान लिया, रेडियल लाइन मेथड्स भी देख लिया है, मेथड ऑफ कंटूरिंग ये समझ गए हैं, ग्रिड मेथड भी समझ गए हैं। ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। तो एक बार रिकैप और करा देते हैं। टोटल कंटूरिंग का टॉपिक खत्म हो रहा है, कंटूरिंग क्या होती है आप समझ जाइएगा। तो अब शुरुआत से एक बार फिर से आप लोग रिकैप कर लेना कि कोई भी हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका एलिवेशन क्या होता है, सेम होगा। तो कोई भी एक ऐसी लाइन जिनका एलिवेशन सेम हो, ऑल द पॉइंट्स उस लाइन पे, उसको हम लोग कंटूर लाइन बोलते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग कंटूरिंग बोलते हैं, ओके। फिर पर्पज हमने देख लिए हैं, कौन कौन से पर्पज होते हैं कंटूरिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कि हाँ इकोनॉमिकल रहेगा, क्या रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देख लिया है कि कहाँ पर हमारा एलिवेशन ज़्यादा है, जैसे जैसे हिली एरिया होगा तो कोई भी कंटूर ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो उस कंटूर ग्राफ में क्या होगा, हमारा जो चीज़ रहेगी कंटूर ग्राफ में कि इनसाइड को जो हम बढ़ेंगे तो वो ग्राफ क्या होंगे हमारे, उसमें हमारा वैल्यू कम होती जाएगी। और सॉरी, जब हिली एरिया होगा तब बढ़ती जाएगी और जब डिप्रेशन होगा तो कम होती जाती है। और जब फ्लैट होता है तो कहीं ना कहीं वो लाइनें दूर दूर रहती हैं, कोई भी ग्राफ होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ हम समझ गए और ये हम जब जान गए हैं तो हाँ, अब यहीं पर हम अगर कोई भी एक ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ को देखकर हम लोग ये जान सकते हैं कि कैसे हमारा कोई भी ग्राफ है और उसको हमको कैसे ड्रा करना है, ओके क्लास। तो थैंक यू, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया है, चीज़ों को समझिए।